الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مجلسوں میں آپ نے سماعت کیا کہ حج کیا ہے، حج کی فرضیت، حج کی ضرورت، حج کی اہمیت، اس سب پر ہم نے تفصیلی کلام کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ آپ کے سامنے بتایا کہ ایک مسلمان جب حج کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کس کس طرح کی تیاری کرنی ہے. کل میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے اسے پیش کیا تھا کہ عمرے میں یا احرام کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچا جائے اور کن کن چیزوں کے کرنے کی ہمیں اجازت ہے. آپ نفل عمرے دوسروں کی طرف سے نفل طواف کر سکتے ہیں. یہ ہوا نفل طواف اور بعد کے عمروں کا مختصر ذکر. جب تک مکہ مکرمہ میں ہے یہ سب کرتے رہے. اس کے بعد میرے دوستوں دل ذوق شوق میں بس پور ایام کو گناتے رہے کہ اب حج قریب آ رہا ہے، اب حج قریب آ رہا ہے. آؤ آج ہم تفصیل سے حج کے ان ایام کا ذکر کریں. حج کی ابتدا آج ذی الحج سے ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو ذی الحج کی 8ویں تاریخ نماز فجر کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف عزم سفر فرمایا. اپنی ناقہ مبارکہ پر جلوہ فرما ہو کر 8ویں ذی الحج کی فجر کے بعد مکے سے مینا کی طرف چلے. اس لیے سنت یہی ہے کہ 8ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد ہم مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے چلے. لیکن یہ عام حاجیوں کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اب لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے، پورا خیموں کے شہر آباد ہے، سب ایک جیسے خیمے ہیں. ہم لوگ وہاں کے لیے نئے ہیں اور اس زبان کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. اس لیے ہم عام سادے حاجیوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کے معلمین کے انتظام کے مطابق وہ لوگ ایک دن پہلے 7ویں ذی الحج کی رات ہی سے مکے سے حاجیوں کو لے جا کے مینا پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس بات کی اجازت کہ اگر ایسی کوئی بات آ گئی اور آپ کا معلم 7ویں ذی الحج ہی کو آپ کو لے کے مینا کے لیے روانہ ہو جائے تو آپ بلا کراہت جا سکتے ہیں. اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ، کوئی خلاف شرع بات نہ ہوگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو وہاں پہنچے ہیں، آج کے پہلے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، بس اتنا فرق ہوا، وہ بھی ایک مجبوری کے تحت ہوا ہے. تو آپ کا یہ جانا گناہ میں شمار نہ کیا جائے گا. اس کی اجازت شریعت سے ملی. تو 7ویں ذی الحج کی شام ہی سے یعنی مغرب بعد یا عشاء بعد سے مکہ خالی ہونا شروع ہوتا ہے اور مینا آباد ہونا شروع ہوتا ہے. تو ابھی تک تو ہم نے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا، احرام تار کیا تھا. اس لیے 7ویں ذی الحج کی صبح یا 6 کی شام یا اگر 1-2 روز پہلے ہی ہم چاہیں تو ہمیں اس کی اجازت ہے
اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم حج کا احرام باندھے، حج کی نیت کریں. حج کا احرام آدمی کی صبح باندھ لینا چاہیے یا اس کے پہلے. ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ 2 روز، 1 روز، 3 روز پہلے ہی اگر موقع ہو تو احرام باندھ لیں. اس لیے کہ جتنی جلدی احرام باندھیں گے تو جتنی زیادہ دیر احرام کی پابندیوں میں رہیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ احرام باندھنے کے بعد ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. اس طریقے کے مطابق آپ جب حرم پہنچ کر ایک طواف اور ایک سعی کر لیں گے تو بڑی سہولت ہو. وہ یہ کہ آپ 6 ذی الحج کو یا 7 کی صبح یا 5 کو کسی بھی دن جب اللہ توفیق دے اسی طرح اپنی قیام گاہ پر غسل فرما دیں. غسل کر کے احرام کی چادر، احرام کی لنگی زیب تن فرما دیں. جیسے جہاں پہنا تھا وہاں پہن لیں. احرام کی چادر، احرام کی لنگی زیب تن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے احرام کے کپڑوں پر خوشبو مل لیں، اپنے بدن پر کچھ خوشبو کا استعمال کر لیں اور اس کے بعد حج کے احرام کی نیت کر لیں. لیکن حج کے احرام کی نیت کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا انسان جو حج کا احرام مکے میں باندھتا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حرم میں پہنچے اور حرم میں پہنچ کر حج کی نیت کرے. افضل یہ ہے. اگر آپ عزیزیہ میں ہے، روسیفا میں ہے یا بہت دور ہے اور آنے جانے میں بڑی تکلیف ہے اور اس دوران بھیڑ بہت بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ حرم میں پہنچنے کی بجائے اپنے قیام گاہ ہی پر 2 رکعت نماز پڑھ کر حج کے احرام کی نیت کر لے تو بلا کراہت آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ احرام باندھ لیں، کپڑے گھر پر تبدیل کر لیں اور نیت کرنے کے لیے حرم پاک پہنچ جائیں. دوپہر کے وقت پہنچے، دن میں 10-11 بجے پہنچے یا رات میں 12-1 کے بعد پہنچے تو ذرا بھیڑ کم ملے گی. اور ایسے وقت میں آپ جب حرم کعبہ شریف میں پہنچ گئے باوضو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا. جیسے یہاں عمرے کا احرام باندھتے وقت 2 نفل پڑھی تھی، اب حج کا احرام باندھنا ہے تو 2 نفل پڑھے. اب نیت کریں. نیت یوں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے میری طرف سے قبول فرما دے. اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے میری طرف سے قبول فرما دے. تو حج کی نیت کرتے ہی اب پھر پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. آپ کو 3 بار تلبیہ پکارنا ہے. اب پھر لبیک کا ترانہ جاری ہو گیا. آپ نے جب عمرے کا احرام باندھا تھا تو نیت کے بعد سے لے کر عمرے کے کئی روح طواف کے درمیان بار بار لبیک پڑھتے تھے. اب جب آپ نے حج کا احرام باندھا اب پھر لبیک شروع ہو گیا ہے. یہ لبیک اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے جب تک کہ 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکری نہ مار. یہ جو 20 کا دن ہے یعنی جس دن حج کی نیت کی اس کے بعد سے لے کر لبیک کا ترانہ کثرت سے پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. چلتے پھرتے لبیک پڑھے، اٹھتے بیٹھتے لبیک پڑھے، لبیک کا ترانہ کثرت سے پڑھے. اور جب 10ویں تاریخ کو آپ آئیں گے اور شیطان کو پہلی کنکری ماریں گے اس وقت یہ لبیک کا ترانہ ختم ہوگا. اس کا خیال رہے. اب آپ نے 3 بار لبیک پڑھ لیا، آپ پر دوبارہ احرام کی پابندیاں جاری ہوئی
فحش بات کو یوں بھی حرام اور زیادہ بنا کر دیا گیا، بدنگاہی یوں بھی حرام، احرام کی حالت میں زیادہ حرام، ایسے ہی اپنی زوجہ کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یا اس طرح کے مبادلات جو شہوت کی طرف جاتے ہو، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ خوشبودار چیز کھا نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، قصداً خوشبودار چیز سونگ نہیں سکتے، اس طرح کی وہ ساری پابندیاں جو کل ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اب تصور میں یہ بسا لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہے اللہ، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تو بار بار یہ تصور قائم رکھیں کہ ہم رب کے دربار میں حاضر ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کہ اس وقت لبیک 3 بار پڑھ کر خوب دعا مانگی۔ اب یہاں پر ایک بات کا حکم اور دیا گیا، علماء فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو حج کا احرام باندھنے کے بعد مینا جانے سے پہلے حج کی سعی کر لیں، حج کی سعی کا وقت حج کا احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف زیارت کے بعد تک ہے، اس دوران کبھی بھی آپ حج کی سعی کر سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مینا جانے سے پہلے حج کے احرام باندھنے کے بعد اس بات کے حقدار ہو گئے کہ آپ اگر چاہیں تو حج کی سعی حج کے پہلے کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو وہاں ایک نفل طواف کرنا ہوگا۔ یہ نفل طواف اس لیے کرنا ہوگا کہ سعی ایک ایسی عبادت ہے کہ نفل طواف تو ہوتا ہے، نفل سعی نہیں ہوتی، اور سعی اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے پہلے طواف کیا گیا۔ اس لیے احرام باندھنے کے بعد مینا جانے سے پہلے کسی وقت اللہ توفیق دے ایک نفل طواف کی نیت کرے، اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے میری طرف سے قبول فرما دے۔ جیسے یہ نیت کی تو نیت کرتے ہی آپ کو ویسے ہی طواف کرنا ہے جیسے عمرے کا طواف ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نیت سے پہلے آپ کو کاندھا بھی کھولنا ہوگا، موقع اگر ہے تو شروع کے 3 چکر میں رمل بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ رمل اور استدعاء ہر اس طواف کے لیے ہے جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے۔ ہم نے اگرچہ یہ نفل طواف کیا ہے لیکن ہمارا ارادہ ہے اس طواف کے بعد ہم صحیح کر لیں گے حج کی صحیح، اس لیے کاندھا کھول دے، نیت کرے نفل طواف کی اور شروع کے 3 چکر میں رمل کرے، اور 7 چکر طواف کے کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لے، باب کعبہ کے سامنے آ کر منتظم پر دعا مانگے، زمزم شریف پہ جا کے زمزم شریف پیے، اور پھر صفا کی پہاڑی پر پہنچے، اور صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر ذکر و اذکار کے بعد نیت کرے، اے اللہ میں حج کے سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ جیسے ہی نیت کی اب اس کے بعد بدستور وہی 7 چکر صفا اور مروہ کے لگانے، اسی طریقے سے ہری لائٹوں کے درمیان مردوں کو دوڑنا، عورتوں کو آسانی کے ساتھ سادہ ہی چکر لگانا۔ اس طریقے سے آپ اگر بنا جانے سے پہلے صحیح کر لیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ حج کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ آئیں گے اس وقت صرف آپ کو طواف زیارت کرنا ہوگا، اس وقت آپ کو سعی کی ذمہ داری نہ ہوگی، اس لیے کہ سعی آپ پہلے ادا کر چکے ہیں، اور اگر پہلے سعی نہیں کیے ہوں گے تو طواف زیارت کے بعد آپ کو سعی بھی کرنی ہوگی، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے ابھی کے مقابلے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے کہ یہ مینا پہنچے ہوں گے، ایک دن مینا کی تکلیف، پھر عرفات کی حاضری، پھر مزدلفہ کی رات کا قیام، پھر دن میں قربانی اور کنکری مارنا، اتنا چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا، اس میں تھکن زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت بھی کرنا ہے، اب طواف زیارت کے بعد اب 4 کلومیٹر کی سعی یہ اور زیادہ انسان کو تھکا دیتی ہے، اس لیے اگر
اللہ तौफीक दे तो हमें इस बात की इजाजत दे कि हम हज का एहराम बांधने के बाद एक नफिल तवाफ करें और उस नफिल तवाफ के बाद हज के सही की नीयत से सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाएं। लेकिन ख्याल रहे कि अब ये जो 7 चक्कर लगा दिया तो ये नहीं कि हमने सफा और मरवा दौड़ दिया तो चलो बात कटवा ली। एहराम अभी उतरने वाला तो नहीं है। एहराम उतरेगा कब? जब हमारी कुर्बानी हो जाएगी तब। जब तक कुर्बानी न होगी उस वक्त तक एहराम की पाबंदियों से हम आजाद नहीं हो सकते। तो आपने सही कर ली। अब उसके बाद 7 की रात में अगर मुअज्जिन के आदमी ले जाए तो 7 की रात में, या अगर अल्लाह तौफीक दे आज की सुबह में आप मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना हो। मिना की हाजिरी ये हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। मिना की हाजिरी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के नबी की सुन्नत की अजमत देखो मेरे दोस्तों कि मिना में हमारे लिए कोई खास अलग से इबादत नहीं है कि आज की कोई अलग से कोई इबादत हो, अलग से कोई नमाज हो, अलग से कोई जिक्र हो, बल्कि नबी की सुन्नत ये है आज का दिन नवी रात ये मिना में रुकना सुन्नत है, मिना में कयाम सुन्नत है। और उसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन जब मिना में रुकेंगे कयाम करेंगे तो नमाजें कहाँ पढ़ेंगे? मिना ही में तो पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत की अजमत समझो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद समझो। आज बोलो माज़ल्ला, लाख बार माज़ल्ला, करोड़ बार माज़ल्ला। जिनके गुमराह कुल अकीदा पेश करते हैं कि नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, हम कहते हैं कि नबी तो वो बेलिस्ट बेमिसाल जात का नाम है कि सारे अंबिया मिलकर भी नबी अकरम के बराबर नहीं हो सकते। तो तुम इस शुमारो कतार में हो, ये बू और मसूर की दाल नबी की बराबरी और हमसरी का दावा करते हो। मेरे आका की साथ वो साथ है जहाँ रुक जाए वहाँ रुकना इबादत, जहाँ बैठ जाए बैठना इबादत, जहाँ आराम करने आराम करना इबादत। मक्का और मिना कितना फासला है? ज्यादा से ज्यादा 1.5-2-3 किलोमीटर है। लेकिन आज की तारीख को एक हाजी के लिए सुन्नत ये है कि मिना में रुके और अपनी जितनी नमाजें हैं वो मिना में पढ़े। अब अगर कोई उनकी तरफ घबराहट हो, कहे कि हम मिना में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मक्के में जाके नमाज पढ़ेंगे, वहाँ 1 का 1 लाख सवाब मिलता है, तो दुनिया यही बताएगी, एक आशिक़ रसूल यही बताएगा कि ये तेरा 1 लाख तुझको मुबारक। आज नबी की सुन्नत के मुताबिक हम मिना में नमाज पढ़ेंगे तो हरम की 1,00,000 नमाज के बराबर अल्लाह मिना में 1 नमाज के सवाब भी अता फरमा सकता है। इसलिए कि ये नबी की सुन्नत के मुताबिक किया जा रहा है। यकीनन हरम पाक की 1 नमाज 1,00,000 नमाज के बराबर है। लेकिन एक हाजी के लिए मिना के दिनों में मिना में नमाज पढ़ना, यहाँ रात में क़याम करना मक्के में नमाज पढ़ने से ज्यादा अहमियत रखता है। ये क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम दे रहे हैं। खैर मिना में क़याम, इस मकाम पर एक बात और अर्ज कर दे, मिना में ये जो क़याम होता है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है हाजी बहुत ज्यादा हो गए, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेनें मुज़दलिफा के हुदूद में लगा दी। अब हम तो मजबूर हैं, ये बेचारे ज़ाहिरीन ये हाजी ये सब मजबूर हैं कि जहाँ उनको हुकूमत ने रोक दिया वहीं पर रुकना है, दूसरी जगह तो जा भी नहीं सकते, जगह जगह फौज का पहरा है। ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं अरे वैसे भी तो मिना में नहीं है, जाने तो हम मक्के में या अज़ीज़िया में अपने कमरे में रहेंगे। याद रखो, ऐसा ख्याल अपने दिल में न लाओ, मक्के में मत रहो, अज़ीज़िया में मत रहो। अगरचे मुज़दलिफा में रुकना पड़ जाए, कम से कम मिना से करीब तो हो और उसमें अल्लाह तौफीक दे दे तो अपनी नमाजें मिना के हद में आके भी पढ़ सकते हो। मिना के रात गुजारना है, 1-2 घंटे के लिए आप मुज़दलिफा से मिना की हद में दाखिल हो जाओ और कुछ रात का वक्त यहाँ भी बिता लो, ये सुन्नत तो मिल जाएगी। लेकिन मक्के में क़याम न करो, अज़ीज़िया में क़याम न करो। नबी की सुन्नत यही है कि 8वीं तारीख को और 9वीं शब को मिना में क़याम करना है। अब मिना में आपको करना क्या है? मिना में अगर आप आज की सुबह को पहुंचे हैं तो ज़ोहर, असर,
मगरिब, इशा और 9वीं तारीख की फज्र, ये 5 वक्त की नमाजें मिना में पढ़नी है। और अगर आप रात ही आ गए हैं तो एक फज्र और आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, तो आप ये 5 और 6 वक्त की जितनी वक्त की नमाजें वहां पढ़नी हो, आपको मिना में नमाज पढ़नी है, बाकी जिक्र अज़कार करने हैं और लब्बैक की कसरत करनी है। ऐसे वक्त में मेरे दोस्तों, मिना के इस दिन को और मिना की उस रात को गनीमत जान। ये मत सोचो कि हम तस्वीर बैठे हैं तो गप्पे लड़ावे, हंसी मजाक करें, घर की उधर की बात करें, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि ये जो नवी शब मिना की रात, ये रात हाजी के लिए शबे कद्र से अफजल है, शबे कद्र से अफजल है। इसलिए इस अफजल रात, इस फजीलत वाली रात की अजमत को समझो और उस रात को सोने में न जाया करो, बल्कि अल्लाह तौफीक से ज्यादा जिक्र अज़कार करो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक की कसरत करो। उलमाए किराम ने मुख्तलिफ वजीफे बताए हैं, उन रातों में वो वजीफे पढ़ो और दुआएं मांगो, इसलिए कि ये रात बड़ी अहम रात। कल हज का दिन है, कल हम अल्लाह के मेहमान होने वाले हैं और आज अल्लाह की याद में और उसकी मेहमानी के शौक और शौक में अल्लाह का खूब जिक्र करें। इसके साथ साथ थोड़ी देर आराम भी कर ले, इसलिए कि अभी 10 को 11 को 12 को बड़ी मेहनतें करनी है, बड़े काम करने हैं। इस अपने बदन का, अपनी आंख का भी हक है, तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा कुछ न कुछ आराम भी कर लो। और फिर सुबह की अजान होगी, सुबह की नमाज पढ़ी जाए। ये 9वीं तारीख शुरू हो गई, 9वीं का सूरज निकलने से पहले 9वीं की सुबह होते ही नमाज फज्र का ऐलान हुआ। 9वीं तारीख को फज्र की नमाज मिना में अदा की जाए और मिना में नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर इंतजार करें, जिक्र अज़कार करते रहे। जब सूरज निकल आए उस वक्त सुन्नत यह है कि अरफात के लिए रवाना हो। लेकिन मुश्किल यहाँ फिर पेश आती है, जैसे मिना में आज की सुबह को पहुंचना था, हमारे मुअल्लिमीन हमें 7 की रात ही में ले जाके पहुंचा देते हैं। ऐसे ही अरफात के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 9वीं तारीख को फज्र की नमाज पढ़ी, जिक्र अज़कार करते हुए सरकार तशरीफ फरमा रहे। और जब सूरज निकला, अब कोहे सबीर पर सूरज की किरणें पहुंची, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से अरफात के लिए रवाना हुए। तो अक्सर बेहतर सुन्नत अंसब यही है कि हम भी इस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए अपने आप को वहां रोके रहे और नमाज फज्र के बाद मिना से रवाना हो। लेकिन वाली के आदमी या टूर वाले रात ही में चिल्ला के नाक में दम कर देते, चलो चलो चलो, और साथी घबरा के कहते हैं अगर नहीं जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, हमको बस नहीं मिलेगी, हमको सवारी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर अल्लाह हिम्मत और ताकत दे तो ये सोच लो कि सब जाते हैं जाएं, हम तो उसी वक्त जाएंगे जब अल्लाह के हबीब तशरीफ देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बूढ़े हैं, कमजोर है, ज्यादा मालूमात नहीं है, तबीयत घबराती है, हमारे सब साथी जा रहे हैं, हम अकेले हैं, क्या करें। ऐसे में अगर नमाज फज्र से पहले ही मुअल्लिम आपको अरफात लेके चला गया तो उससे आपके हज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कोई कफारा नहीं देना है। इसलिए अगर मजबूरन ऐसी कोई बात आ गई, आपको अरफात में 9वीं की सुबह के बजाय पहले रात ही से ले जाके छोड़ दे तो आप जा सकते हैं। शरीयत ने उसे नाजायज और हराम और ममनू नहीं करार दिया है। आप इस तरीके से अरफात में वक्त से पहले भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बेहतर अफसल यही है कि आप अरफात के लिए जब रवाना हो तो नमाज फज्र मिना में पढ़ ले, उसके बाद रवाना हो। एक तजुर्बे की बात अर्ज कर दे, ये जो बसें जाती ये जरूरी तो है नहीं कि एक ही साल सब बस चली गई, अब आएगी नहीं। चंद बसें हैं, वही बसें बार बार आती जाती रहती है और ये आने जाने का सिलसिला सुबह देर तक जारी रहता है। इसलिए घबराने की बात नहीं, आप लोगों की बात सुनते रहे, अब करना अपने हाथ में है। अगर आप नमाज फज्र तक मिना में रुके रहे, इंशाअल्लाह उसके बाद भी अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम फरमाएगा कि आप अरफात पहुंच जाएंगे। और याद रखना
कोई ये न समझे कि हज हम अपनी ताकत से कर लेते हैं, हज के अरकान हम अपने इल्म से कर लेते हैं। कोई अपने इल्म से हज के अरकान पूरे नहीं कर सकता, कोई अपनी ताकत से नहीं कर सकता, कोई अपने शौक से नहीं कर सकता। हज बहुत मुश्किल है, बंदा बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक सिखाया कि जब भी नियत करनी हो तो ये करो, ऐ अल्लाह इसे हमारे लिए आसान कर, इसे हमारी तरफ से कबूल करना। ये बार बार जो हम कह रहे हैं ऐ अल्लाह आसान कर, आसान कर, आसान कर, तो हज उसी के लिए आसान होता है जिसमें अल्लाह का करम होता है। आदमी अपने इल्म और अक्ल की बुनियाद पे हज के अरकान नहीं अदा करता, रब्बे रहमान के करम से इंसान हज के अरकान से ही अदा करता है। तो अल्लाह पे भरोसा रखो तो इंशाअल्लाह अरकान की सही अदायगी के असबाब वही मुहैया फरमाएगा। आज अब नवी तारीख आई, नमाज़े फज्र आपने मिना में अदा की, जिक्र अस्कार करते रहे। अब सवारी को सवार होकर या पैदल जिस तरह अल्लाह ने तौफीक दी, आप अरफात के लिए रवाना हुए। अरफात पहुंच गए। अरफात पहुंचने के बाद एक बात ये सुन लो मेरे दोस्तों, अरफात में सब अपने अपने खेमों में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाल ये था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जगह मस्जिद निमरा है वहां पर नमाज की इमामत फरमाई थी और 1,24,000 सहाबे किराम कमोबेश पूरे अरफात के मैदान में, जो दूर दूर जहां जहां थे सहाबा ने अपनी अपनी अलग अलग जमात की थी। तो उस सुन्नत का फायदा उठाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत और उनसे मोहब्बत का अमली मुजाहिरा करते हुए हमें मस्जिद निमरा जाने की बजाय सहूलत किसी में है अपने अपने खेमे में ही रहकर मौजूद। एक अहम मसला जरूर ख्याल रखे, वो ये है कि अमीर हज, उनका जो अमीर है वो जब मस्जिद निमरा में नमाज पढ़ाता है तो जोहर और असर मिला के पढ़ाता है। और यकीनन मसला यही है, अहले सुन्नत की जब हमारी वहां हुकूमत की 1300 साल तक, उन हुकूमतों के जमाने में भी जो अमीर हज सुन्नी जन्नती इमाम आते थे तो वो जोहर और असर को एक साथ मिला के पढ़ते थे, यही सुन्नत रसूल है। लेकिन ये जोहर और असर मिला के पढ़ना सिर्फ अमीर हज की एक जमात के लिए, उसके अलावा पूरे अरफात के मैदान में लाखों जमातें हो रही है, इन लाखों जमातों के लिए जोहर के वक्त में जोहर पढ़ना है और असर के वक्त में असर पढ़ना है। आप जब वहां जोहर और असर की अपनी अलग जमात बनाएंगे तो कुछ मुफ्त के मुफ्ती वहां तुम्हें सिखाएंगे, अरे जोहर के साथ असर मिलाओ, जमा बैन सलातैन करो, जमा बैन सलातैन, तो उनके बात पर न जाना, अपनी जोहर के वक्त में जोहर अदा करना, असर के वक्त में असर अदा करना। तो जोहर और असर की नमाजें अपने अपने वक्त में अपनी जमाअत के साथ अदा कर ले और जब असर की नमाज हो जाए उसके बाद खुले आसमान के नीचे जाकर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी दे। ये वकूफ करना हज की कोई अलग से नमाज नहीं है, नमाज वही जोहर और असर ही है जो रोज की है। मुज़दलिफा में वही मगरिब और इशा की है जो रोज की है। बस नबी ने मिना में कयाम किया तो मिना में रुकना इबादत हुआ, अरफात में नबी ने कयाम और वकूफ किया तो यहाँ वकूफ करना इबादत हुआ, मुज़दलिफा में नबी ने कयाम और वकूफ किया तो वहां रुकना वकूफ करना इबादत हुआ। अरफात में असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये दरमियाना वक्त खास वकूफ का है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ फरमाने के लिए जिस जगह आज मस्जिद निमरा है वहीं पर नमाज की इमामत फरमाई और ऊंटनी पर सवार होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल रहमत तक पहुंचे और जबल रहमत पर जिस जगह वो सफेद सुतून बना हुआ है उसी के दामन में नीचे एक जगह खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ किया और इतनी देर तक वकूफ किया, यानी इतनी देर तक ठहरे रहे ताकि के सूरज गुरूब हुआ। अगर अल्लाह तौफीक दे वकूफ के लिए जबल रहमत के दामन में पहुंच सको तो बहुत अच्छा, वरना जबल रहमत की बजाय पूरे हुदूद अरफात में जहां भी वकूफ करो आपका हज इंशाअल्लाह जरूर मकबूल मंजूर होगा। अपने अपने क़ैमों में ही बाहर खड़े होकर आप वकूफ करें, खड़े होकर दुआ करना है, बार बार लब्बैक पढ़ना है,
दुआएं करनी है, ज़िक्र अस्कार करने हैं, दुरूद पाक पढ़ना है, सलात व सलाम पेश करना है और वहीं पर अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहना। ये खास हज का रुकने आज़म। और मेरे दोस्तों, ये वो वक्त है कि जिस वक्त आप वकूफ कर रहे होंगे, चश्मे तसव्वुर से ये सोचो कि जिस वक्त हम अरफात में हैं, अल्लाह करीम अपने फरिश्तों के बीच मुबाहात फरमा रहा है और इरशाद खुदाबंदी होता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अब मेरे इन बंदों को देखो जो दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं। ऐ फरिश्तों देखो, ये मेरे बुलावे पर आए हैं, परागंदा बार है, परेशान आल है, गर्दो गुबार से अटे हैं, ये भूखे और प्यासे हैं, तकलीफ उठा के आए हैं, दूरों दराज से आए हैं और मेरे बुलावे पर आकर लब्बैक पढ़ रहे हैं। ऐ फरिश्तों बताओ मैं इनके लिए क्या करूं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू रहीम व करीम मौला है, बख्श दे तो तेरा एहसान है, न बख्शे तो तू अपनी मर्जी का मालिक है, तू करीम है मौला, तू करीम है मौला। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, इस मैदान अरफात में जितने ईमान वाले आए हैं मैंने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी, जितने ईमान वाले आए हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। फिर फरिश्तों से अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये देखो किस तरह रो रहे हैं, ये मुझसे मग़फ़िरत मांग रहे हैं, मुझसे तौबा की भीख मांगते हैं, मुझसे नेकियां तलब कर रहे हैं, मुझसे मग़फ़िरत और दरगुज़र की भीख मांगते हैं। ऐ फरिश्तों मैं इनके साथ क्या मामला करूं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू अफू है, तू गफूर है, ऐ मौला तू रहम फरमा, तू नवाज दे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इन सब ईमान वालों की मग़फ़िरत कर दी और सुन लो, आज ये जिसकी सिफारिश करेंगे मैं उनकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा, कि जिनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उन सब अहले ईमान की मग़फ़िरत कर दूंगा। सबको अल्लाह माफ कर देता है। वो दिन, वो रात, वो हज के अय्याम रोने के लिए है मेरे दोस्तों, आंसू बहाने के लिए है। अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख से गिरा हुआ आंसू ये जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। और नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत में निकला हुआ आंसू, अल्लाह के खौफ से आंखों से बहा हुआ आंसू, ये वो आंसू है जो जहन्नम की आग को सर्द कर दिया करता है। अल्लाह करीम हमें अपने खौफ में रोने वाली आंख अता करे, अपने महबूब की मोहब्बत में रोने वाली आंख अता करे। कहे अरफात में आपको ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़नी है, असर के वक्त में असर पढ़नी है और फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत को तलब करना है। खूब खूब दुआएं मांगे यहाँ तक के सूरज गुरूब हो जाए। सूरज गुरूब होने के बाद वहाँ तोप का गोला छूटेगा, फौज का पहरा हटेगा और जैसे सूरज गुरूब हुआ अरफात से लोगों के काफिले मुज़दलिफा की तरफ चलने शुरू होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे हालात में भी जब हाजी अरफात के मैदान से चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने में अभी तक तो यही आया कि जितने हाजी हैं उनमें अरफात में कोई नमाज मगरिब नहीं अदा करता। हाँ, 2-4-10 ऐसे मुक़र्रर होते हैं, सरकार जो जमातें कहीं नजर आती है तो मगरिब की भी जमात वहाँ करते हैं। ये नादान है, गुस्ताख है, बेअदब है, उनको मसाइल का पता ही नहीं। अब पता नहीं वो राजी है कि खारजी है, हमें इसका कोई पता नहीं। लेकिन जो सुन्नी जन्नती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसाइल से वाकिफ है वो इस राज मोहब्बत से भी वाकिफ है कि अरफात के मैदान में अगरचे मगरिब का वक्त हो गया है, हम मगरिब न पढ़ेंगे और मुज़दलिफा को चलेंगे और मुज़दलिफा के रास्ते में जहाँ भी मगरिब न पढ़ेंगे जब तक हम मुज़दलिफा न पहुँच जाएंगे। तो आज आपको मुज़दलिफा पहुँचना है, ऐसा क्या वक्त हो जाएगा। उस वक्त में पहले मगरिब की फर्ज पढ़े, फिर इशा की फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद मगरिब की सुन्नतें, फिर इशा की सुन्नत, नवाफिल, जिक्र वगैरह पढ़े, उसके बाद रात मुज़दलिफा ही में क़याम करें। कुछ लोग रात में भीड़ भाड़ की वजह से कहते हैं चलो रात निकल जाएंगे। आप हरगिज़ ऐसा न करें। मुज़दलिफा से रात ही रात निकल जाना न सिर्फ खिलाफ सुन्नत है बल्कि उसमें एक
بہت بڑا حج کا واجب چھوٹ جاتا ہے. حج کا واجب ایک یہ بھی ہے کہ مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر وقوف کریں. یہ واجب ہے, حج کے واجبات میں سے ہے. اب حکم یہ ہے کہ آپ رات مزدلفہ میں قیام کریں اور رات قیام کر کے جب صبح کی اذان ہو, اذان صبح کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر, چاہے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا اللہ توفیق دے, جیسے عرفات میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی ویسے مزدلفہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگے. اس رات میں بھی ذکر و اذکار کرتے رہے. یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی آپ دیکھیں گے, یہاں وہاں بھیڑ لگی ہے اور لوگ کچھ زمین پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ زمین پہ تلاش کرنے والے کنکریاں چن رہے ہیں. یہ کنکریاں چننا مزدلفہ کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو وہاں سے کنکریاں چنے. یہ کنکریاں 70-80 کی تعداد میں چن دے, 90-100 کی تعداد میں چن دے, اس لیے کہ جتنے دن مینا شریف میں رکنے ہوں گے اتنے دن ان کنکریوں کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا. یہ وہاں کام آئیں گی. یہ کنکریاں چن کر 2 بھاگ صاف کر کے کسی تھیلی میں, بٹوے میں, بوتل میں حفاظت کے ساتھ آپ رکھ لیں. رات گزارے, ذکر و اذکار کریں, نماز فجر پڑھیں, وقوف مزدلفہ کریں. اسے پھر سمجھ لیں مزدلفہ کا یہ وقوف واجب ہے. اگر آپ وقوف مزدلفہ چھوڑ دیں گے اور یوں ہی واپس چلے آئیں گے تو اس کا وقت بھی تو اسی دن ہے, اس کی قضا بھی نہیں ہو سکتی. اگر وقوف مزدلفہ چھوٹ گیا تو آپ کو کفارے میں ایک دم یعنی ایک بکرے کی قربانی دینی ہوگی. اس لیے اس واجب کو ترک نہ کریں, وقوف مزدلفہ ضرور ادا کریں. اب 10ویں کی صبح نمودار ہوئی, آپ نے وقوف مزدلفہ کیا. وہاں سے آپ منا کے لیے چلے. منا پہنچ کر اپنے سامان وغیرہ خیمے میں رکھے اور کم از کم 8-10 کنکریاں ساتھ میں لے لیں. اس لیے کہ پہلے دن صرف 7 کنکری کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے دن آپ ان کنکریوں کو لے کر شیطان کو مارنے کے لیے چلے. شیطان کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص مقامات, جن مقامات پر 3 نشانیاں ستون نما بنا دی گئی ہے, اور یہ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جس جگہ شیطان لعین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی اس جگہ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا. تو پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, اور دوسرے اور تیسرے دن اور اگر ایک دن اور گئے تو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. پہلے دن 7 کنکری مارنی ہے. آپ احرام باندھے ہوئے ہیں, لبیک پڑھتے جا رہے ہیں, کنکریاں ہاتھ میں ہیں. شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں اور جب وہاں پہنچے تو ایک ہاتھ سے کنکری ڈوبے, انگوٹھے اور بازو کی انگلی سے لے اور ہاتھ کو ڈوب کر کے شیطان کے قریب جا کے زور سے مارے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. خیال رہے کہ 7 کنکریاں جدا جدا. کوئی یہ سوچے ایک ساتھ 7 کنکری لے کے ایک ساتھ 7 مار دے, ایک ساتھ 7 نہیں 70 بھی مارو گے تو ایک ہی گنی جائے گی. سنت میں یہی ہے کہ 7 بار آپ اسے مارے اور اس سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کریں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق 7 کنکریاں مارے اور واپس ہو جائیں اپنے خیمے کی طرف یا قربان گاہ کی طرف. جب آپ وہاں سے واپس آ گئے, پہلے دن کی کنکری مار لی, اب وقت آیا قربانی کا. قربانی کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں, کہاں قربان گاہ ہے, کہاں جانا ہے, کیسے کرنا. اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے, یہ سنت ہے. اور اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی قابل اعتماد سنی بھائی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو آپ اپنا پیسہ دے دیں کہ وہ آپ کی قربانی کر دیں. لیکن اس سے موبائل پر رابطہ ضرور رکھیں اور اس سے کہہ دیں کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک قربانی مت کرنا. اس لیے کہ یہ جو ارکان ہیں حج کے, ان میں ترتیب بھی ہمارے امام کے نزدیک واجب ہے. ترتیب کا مطلب یہ کہ پہلے منا جانا, پھر عرفات جانا, پھر مزدلفہ کا وقوف, مزدلفہ کے وقوف کے بعد شیطان کو کنکری مارنا, پھر اس کے بعد قربانی کرنا, قربانی کے بعد سر کو مڈانا,
फिर उसके बाद तवाफ ज़ियारत। ये तरतीब भी इमाम आज़म अबू हनीफा के फरमान के मुताबिक वाजिब है। अगर इस तरतीब में उलटफेर हो जाए तो वाजिब छूटेगा और एक बकरे की कुर्बानी हमारे ऊपर लाज़िम हो जाएगी, दम देना पड़ेगा। इसलिए जिस सुन्नी भाई से कुर्बानी के ताल्लुक से बात करे उसे कह दे कि जब हम फोन करेंगे उस वक्त वो कुर्बानी करे, यानी जब तक आप कंकरी मार न ले उस वक्त तक कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और जब वो कुर्बानी कर ले, फोन पर चला दे कि आपकी कुर्बानी हो गई, तब आपको चाहिए कि आप अपने सर के बाल मुड़ाएं। ये तरतीब का ख्याल रखना ये वाजिब है, ये जरूरी है। आम तौर पर लोग हुकूमत को दे दिया करते हैं, ये कूपन दे दो, पैसा दे दो, और कौन झंझट में जब पढ़ने जाए। हम कहते हैं ये झंझट में पढ़ने जाए का तसव्वुर क्यों रखते हो? अरे हज करने जा रहे हो, जन्नत हासिल करने जा रहे हो, अभी मग़फ़िरत का सामान करने जा रहे हो, अब थोड़ी सी तकलीफ के लिए कहते हो ये कौन झंझट में पड़े। अरे यही झंझट तो उस बड़ी झंझट से बचाने वाली है। इसलिए कुर्बानी के लिए ये मत सोचो कि लाओ उनको दे दो, उनको दे दो, बल्कि पैसा खर्च करना कमाल नहीं है, नबी के फरमान के मुताबिक खर्च करना ये कमाल है। इसलिए कुर्बानी के लिए बहुत ख्याल रखो। खुद अगर जाके कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो सुन्नी जन्नती जिम्मेदार उलमा या इस तरह के जो जिम्मेदार लोग मिल जाए उनके जरिए कुर्बानी का इंतजाम करो। अब 10वीं तारीख को आपने पहले मिला पहुंचकर शैतान को कंकरी मारी, एक शैतान को 7 कंकरी, और उसके बाद आपने कुर्बानी की या कुर्बानी कराई। कुर्बानी की खबर लग गई कि कुर्बानी हो गई। अब आपको चाहिए आप अपने सर के बाल करवा ले। आप सर के बाल करवा लिए, हलक करा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज के एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए। आज कोई नौजवान हमसे पूछे ये सर मुड़ाने में क्या हिकमत है, ये अच्छे बड़े बड़े बाल हमने रखे, ये देसी दराज और इसमें इतना इतना सेटिंग में पैसा खर्चा किया और आज ये सर मुड़ा के बड़ी मेहनत से पड़े बाल चले गए। तो मेरे दोस्तों, हम उन नौजवानों से कहते हैं कि जितनी भी मेहनत से पड़े हो, जितने भी पैसे में पड़े हो, लेकिन इसके बदले जन्नत मिल रही है, आजादी मिल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने कसर करने वालों के लिए एक बार दुआ, एक बार तो अलग कराने वालों के लिए 3 बार दुआ की। कसर कराने वालों के लिए 1 बार दुआ और अलग कराने वालों के लिए 3 बार दुआ। मेरे दोस्तों, कितनी अजीम नेमत। आका फरमाते हैं कि जब एक हाजी अलग कराता है उसके हर बाल के सर पे अल्लाह ताला उसे एक नेकी अता फरमाता है। हम तो गिर भी नहीं पाते कि हमारे सर में कितने बाल, लेकिन जितने बाल है हर बाल के सर पे अल्लाह कबीर मौला एक एक नेकी अता फरमा रहा। और उससे आगे बढ़कर हम इन नौजवानों से कहें कि ऐ नौजवानों, जरा देखो तो कि अल्लाह की हिकमत, हमें सर मुड़ाने का जो हुक्म दिया उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जमाने जाहिलियत में जब गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, उस जमाने में जब कभी किसी गुलाम को कोई उसका मालिक आजाद करता था तो आजाद करने की अलामत के तौर पर उसका सर मुड़ा दिया जाता था। ये इस बात की अलामत होती थी, अरे बंदे, जैसे तेरे सर पर बाल का बोझ नहीं है ऐसे ही तेरे वजूद पर गुलामी का बोझ नहीं है। जैसे तेरा सर बालों से आजाद, तेरा वजूद गुलामी से आजाद। तो इस अलामत को इस्लाम ने यूं बरकरार रखा कि जब हज करके कुर्बानी कर दिया तो आपने फरमाया अपने सर के बालों को मुड़ाओ। मतलब ये है, अरे हाजी, जैसे तेरा सर बालों के बोझ से आजाद है वैसे ही तेरा नामे आमाल गुनाहों के बोझ से आजाद कर दिया गया। जैसे तू घुटे सर से बिल्कुल हल्का फुल्का हुआ, ऐसे ही तेरा नामे आमाल ये गुनाहों के बोझ से पाक साफ कर दिया गया। ये है करम और करामत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अज़मत है, ये रिफात है, ये शौकत है, ये रहमत है, ये बरकत है, ये बरकत वाले बाल है। और खुद हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी हज्जतुल वदा के मौके पर अपने सरे अक़दस के बाल करवाए थे। तो सुन्नत
रसूल समझ कर अपने बालों को उतारो, बाल उतारने के बाद गुस्ल करके अपने सिले हुए लिबास पहन लो, सिले हुए लिबास पहनकर एहराम की चादर उतार दो। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम की अक्सर पाबंदियां आप पर से खत्म हो गई। अक्सर इसलिए कह दिया, इसमें सारी पाबंदियां तो खत्म हो गई, लेकिन एक पाबंदी बाकी रही, वो है ज़ौज और ज़ौजा का रिश्ता। ज़ौज और ज़ौजा का रिश्ता उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक के हम तवाफ़े ज़ियारत न करें। ये एक पाबंदी बाकी रहती है, बाकी सारी पाबंदियां खत्म हो जाती है। इसलिए आप जब अपने इहराम के लिबास वगैरह उतार दे, सिले हुए लिबास पहने, अब आपको ये वक्त मिला कि 10 का दिन या रात, 11 का दिन या रात या 12 का दिन शाम तक, इतने वक्त में जितनी जल्द हो सके आप काबतुल्लाह में हाजिर हो और वहां सिले हुए आम लिबास में आप हज का तवाफ करें। तवाफ वही जैसे नफिल तवाफ किया था वैसे ही सादा तवाफ, और नियत यही करनी है, अल्लाह मैं हज के तवाफ की नियत करता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा दे। जब ये नियत करके आपको 7 चक्कर तवाफ करना है। अब सिला हुआ लिबास पहने हैं तो न कांधा खोलना है न रमल करना है, रमल और इस्तिराह की जरूरत नहीं। आपने 7 चक्कर तवाफ किया, नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी, ज़मज़म किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज मुकम्मल हो गया। ये हुआ हज का मुकम्मल होना। अगर आप पहले हज के एहराम बांधने के बाद किसी नफिल तवाफ में हज की सही कर चुके थे तब तो आपकी सही हो चुकी, और अगर पहले सही नहीं की है अब तवाफ़े ज़ियारत के बाद आपको हज की सही भी करनी होगी। इसलिए हमने पहले ही कहा कि कोशिश ये करें कि पहले ही सही कर ले ताकि तकलीफ से और मेहनत से आप बच जाएं। बहरहाल हज का तवाफ किया। हज के तवाफ के बारे में एक रिवायत सुन लो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक हाजी तवाफ़ ज़ियारत के लिए आता है, जैसे ही वो तवाफ़ ज़ियारत शुरू करता है, अल्लाह करीम की तरफ से एक फरिश्ता आता है और हाजी के पुष्प पे हाथ रखता है और कहता है, ऐ इंसान तू बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा, इस तरह बढ़ता जा कि जन्नत में पहुंच जा, इसलिए कि आज तेरे नामे आवाज में एक भी गुनाह नहीं है, तू पाक साफ हो गया है, तू जन्नती हो गया है। ये बशारत देता हुआ जाता है। तो बहर तवाफ़ ज़ियारत 12 की शाम से पहले पहले ये लाजमी है, जरूरी है, यह हज के फराइज़ में से अहम फर्ज है। इस तरीके से आपका ये हज हुआ। अब रहा कि 11 और 12 ये 2 तारीखें और है। इन दोनों तारीखों में भी आपको मक्के में नहीं रहना है, मिना ही में जाके क़याम करना है। और मिना में भी वही मिना के 2 अरकान है, यानी हर वक्त की नमाज उसके वक्त में अदा करना। अब 11 और 12 इन दोनों तारीखों में आपको चाहिए कि तीनों शैतानों को कंकड़ी मार, तीनों को साथ साथ कंकड़ियां मारनी हो। अब इसमें इस बात का ख्याल रखे, जिस जगह से इन्होंने निजाम बनाया उस तरीके से अगर आप आगे बढ़े तो सबसे पहले एक शैतान को 7 कंकड़ी मारे, किनारे जाके खड़े होकर किबला में दुआ मारे, ये नबी की सुन्नत। फिर आए दूसरे शैतान के पास, उस अलामत के पास आकर 7 कंकड़ी मारे, फिर किनारे चले जाए, वहां जाके खड़े होकर दुआ मारे। अब फिर तीसरे शैतान को कंकड़ी मारे, तीसरे शैतान को कंकड़ी मारने के बाद रुके नहीं, फौरन पलटा, फौरन वापस अपने क़यामगाह की तरफ, लेने की तरफ चले आए। इसका ख्याल रखे कि दूसरे और तीसरे दिन जब तीनों शैतानों की रमी करनी हो, पहले एक शैतान को कंकड़ी मारो, दुआ मांगो, दूसरे को कंकड़ी मारो, दुआ मांगो, तीसरे को कंकड़ी मारो, फौरन वापस चले आओ। तो 11 और 12 को इसी तरीके से करना है। रात 13 तारीख, अगर 12 की रात भी आप क़याम करना है और नीयत है कि 13 को भी हम मिना में रहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 तक मिना में क़याम फरमा रहे, लेकिन 12 को सरकार ने इजाजत दे दी थी कि जो जाना चाहता है जा सकता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने 13 को भी क़याम फरमाया था। तब 13 को भी तीनों शैतानों को सरकार अलैहिस्सलाम ने रमी जिमा किया, कंकड़ी मारी थी। तो अगर आप 13 को रुकेंगे तो फिर तीनों शैतानों को आपको कंकड़ी मारनी है। इसमें 2-3 चीजों का खास ख्याल रखना। एक बात तो ये
کہ पहले दिन सिर्फ एक शैतान को मारा, दूसरे और तीसरे दिन और अगर चौथे दिन रुके तो तीनों शैतानों को कंकरियां मारना है, साथ साथ कंकरी मारना है, सबको अलग अलग मारना है। दूसरी अहम बात यह है कि इसका वक्त क्या है। पहले दिन का जो वक्त है वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, 10वीं तारीख पहला दिन सुबह से ही वक्त शुरू हो जाता है और गुरूब आफ्ताब तक का उसका वक्त है। हाँ, अगर किसी वजह से गुरूब आफ्ताब तक कंकरी न मार पाया तो रात में भी उस कंकरी मारे तो इंशाअल्लाह उसका ये रमी जिमार का अमल मकबूल मंजूर है। जैसे कि हमारे साथ साथी हैं, औरतें हैं, कमजोर लोग हैं और बूढ़े हैं, बीमार हैं, या हम ही हैं थक गए हैं, तो ऐसे दिन में नहीं जा सके, कबीर भाव में दब गए, थक गए, नहीं पहुंच पाए, तो दिन में नहीं मारी है तो रात में भी मार सकते हैं। उज्र है तो वरना बेहतर यही है कि सुबह से लेकर शाम तक यही इसका असल वक्त है। पहले दिन इसी वक्त में कंकरी मारनी, दूसरे और तीसरे दिन इन दोनों यानी 11 और 12 तारीख में कंकरी मारने का वक्त अलग, जवाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब। वहां लोग 11 और 12 को भी सुबह से ही मारना शुरू कर देते हैं। लोगों के मुताबिक मत करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। 11 और 12 को जब तक जवाल न हो जाए, जब तक सूरज ढल न जाए, यानी जोहर का वक्त जब तक शुरू न हो जाए, उस वक्त तक उस दिन की कंकरी का वक्त नहीं होता। तो दूसरे और तीसरे दिन का असल वक्त जो है वो वक्त जोहर से लेकर मगरिब तक, यही दरमियान का आधा दिन ये खास वक्त है। अगर इस वक्त में नहीं मार सके आप बाद में मार दे। इसी तरीके से 12 को, अलबत्ता 13 तारीख को अगर आप रुके हैं तो 13 को फिर इसका वक्त वैसे ही हो गया जैसे पहले दिन था, यानी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त में आप तीनों शैतानों को कंकरी मारे, आप कंकरी मार सकते हैं। मेरे दोस्तों, इन कंकरियों में एक खास बात और भी, आमतौर पर आज लोगों का मिजाज बन गया है, और खास तौर से वो लोग जो यहाँ बहुत ज्यादा वकील और मुवक्किल के चक्कर में रहते हैं, वहां भी पहुंच के कहते हैं ये मेरा वकील बन जा कंकरी मार देना, ये मेरा वकील बन जा कंकरी मार देना। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, अल्लाह माफ करे, खरीदी करना हो पूरे मक्के के सारे मॉल कम पड़ जा, जितना जा जाके शॉपिंग करे, मदीने की सारी मार्केट छान मार, किस जगह क्या मिलता है, क्या भाव मिलता है उनको पता। अब कंकरी मारने के लिए मैं तो थक गई हूँ, मुझको जाना नहीं होगा, मैं जा नहीं सकती, मैं जा नहीं। ऐसा करो ना, तुम वकील बन जा। याद रखो, हज के लिए आए हो जन्नत खरीदने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम इतने कमजोर और लाचार हो कि सवारी में बैठ कर तुम वहां जा सकते हो, तुम पर लाजिम है कि सवारी में बैठ के जाओ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि जरा सी बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, वकील बन जाओ, वकील बन जाओ। ये वकील बनाने से काम न चलेगा। नहीं जा सकते, व्हील चेयर पे जाओ और ले जाके वहां व्हील चेयर पर पहुंच कर अपने हाथ से अपनी कंकरी मारो। ये है शरीयत का हुक्म। और वकील बनाओगे तो ये वाजिब छूट जाएगा। और सुन लो कि ये कंकरी मारना जो वाजिब है, और अगर कंकरी छूट जाती है उस पर भी दम देना पड़ता है। उसकी बड़ी तफसीलात है, कितनी कंकरी कैसी छूटी तो कैसा दम, तो आप किताबों में देखे, उलमा से पूछे, या कोई ऐसी तकलीफ आ जाए इस वकील अजीजी से आप फोन पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। लेकिन अल्लाह करे ऐसी कोई स्टेप पैदा ही न हो। आप हर वक्त की कंकरी उसके वक्त पर मारे, और अर्ज करने के मौला को आसान कर दे तो मौला आसान कर देता है। ये है हज का फलसफा। तो जितने दिन तक वहां रहे ये सब करते रहे, और उसके बाद अल्लाह ताला तौफीक जब दे, आखिरी वक्त आए, आप मक्कतुल मुकर्रमा से रुखसत होने वाले हो तो एक तवाफ़े रुखसत करो, तवाफ़े वदा। ये वाजिब, ये जरूरी है कि जब आप अल्लाह के घर से रुखसत हो तो तवाफ़े रुखसत और तवाफ़े वदा करें। तवाफ़े वदा वैसे ही सादा आम तवाफ है, बस सिर्फ नीयत का फर्क है। अल्लाह मैं रुखसत का तवाफ करता हूँ, अल्लाह मैं तुम्हारे वदाई तवाफ करता हूँ, अल्लाह मैं तवाफ़े वदा करता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा दे। रोती हुई आंख और दी गई नमनाक के साथ उस तवाफ को पूरा करे, नमाज पढ़े, दुआ करे, वाजिब तवाफ अदा करे, और दुआ करते हुए उल्टे कदमों हरम पाक से लिए ये भी दुआ करे कि अल्लाह हमारे इस सफर को आखिरी सफर न बना, फिर तू हमें इस दौरो दया नूर में पहुंचा, हमें बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमा।
तो खूब दुआएं करते हुए वहां से रुखसत हो। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इन पर भी तवाफ वदा वाजिब है, ये भी जरूर तवाफ वदा करे। अगर वो मासूर हो, उस वक्त नापाक हो और ऐसी कोई सभी न होकर रुकने की सूरत बन सके, ऐसे वक्त में उन खवातीन के लिए तवाफ वदा ना हो। अलबत्ता हमको इसकी इजाजत नहीं है कि बगैर तवाफ वदा करे आए। हाँ, इतनी सहूलत अल्लाह की तरफ से जरूर है कि तवाफ जियारत के बाद अगर किसी ने एक नफिल तवाफ भी कर लिया हो तो अल्लाह की तरफ से ये नफिल तवाफ तवाफ वदा के कायम मकाम हो जाएगा। इसलिए तवाफ जियारत के बाद अगर एक नफिल तवाफ भी आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह वो तवाफ वदा के जिम्मे में उसके कायम मकाम होगा और आपका वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर किसी की तारीख ऐसी हो ये तवाफ जियारत किया और भागम भाग चला और ऐसा भागा कि वो उसको मौका न मिला कि कोई नफिल तवाफ के तवाफ रुखसत करता, अब बगैर तवाफ वदा करे वो वापस आ गया, तो ऐसे के लिए हुक्म है कि अपने वतन पहुंचकर एक कुर्बानी की कीमत किसी दूसरे जाने वाले ज़ाहिर हरम को दे और उससे कहे कि जाकर हुदूद हरम में मेरी तरफ से एक कुर्बानी कर दे। ये कुर्बानी वाजिब होगी इसलिए कि उसने तवाफ रुखसत के तवाफ वदा नहीं किया। बाहर वालों के लिए ये तमाम रुखसत वाजिब है। अल्लाह ताला आपके सारे अरकान को आसान करे, कबूल फरमाए। आपके सबसे अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी बार बार हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।